Hello everyone, welcome to your e-learning class of business studies. Have a very warm, wonderful good morning to you all. I hope you all are fine, safe, happy, healthy at your home. Welcome to your e-learning class of business studies. This one is your lecture 16 of business studies, and from this lecture I am going to start your chapter 4, that is business services. From this lecture, in the last lecture I have completed chapter 3. I have given some case study questions as well as I have explained case study question in my notes and videos also. I hope you all have understand how to write the answers of case study question. Now from this lecture I am going to start your chapter 4, that is business services. What is business? ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि what is business. Business is buying and selling of goods and services for the purpose of profit motive. What is services? Anything which cannot be seen but felt by the work, it is called service. Service is the thing which cannot be seen but it can be felt by the customer who is enjoying that services. So business services, what is business service? Business services can be defined as accounting, design, maintenance, printing and supply of temporary personnel etc. provided by specialized firm to other firm, or you can say form of business providing various types of labor services in a wide variety of business sector is called business services. All those things which are business services is also known as auxiliary to trade. बिजनेस सर्विसेज को हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं. ऑल दो सर्विसेज विच आर हेल्पिंग ट्रेड टू रन इन द मार्केट, इट इज़ नोन एज बिजनेस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन. These are the example of business services. A service is an outcome of an economic activity. सर्विस क्या है? एक आउटकम है इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर्विस प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट. सर्विस से हमारी वांट सेटिस्फाइड होती हैं. सर्विसेज आर इंटेंजिबल. सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल है. इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ परचेजिंग एनीथिंग एट फिजिकल, बट इट इज़ द बेनिफिट विच वी आर इंजॉइंग एंड फीलिंग व्हेन वी आर गेटिंग दैट सर्विसेज. ठीक है. तो बिजनेस सर्विसेज क्या है? बिजनेस सर्विसेज मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस. विदाउट सर्विसेज योर ट्रेड कैन नॉट बी रन. बिना सर्विसेज के ट्रेड आप रन नहीं कर सकते. तो बिजनेस सर्विसेज ऑल द फैसिलिटीज़ विच इज़ प्रोवाइडेड इन द बिजनेस टू फैसिलिटेट ट्रेड, इट इज़ कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज. See, business services, there is a diagram, there is a flow chart of business services. Business services are the activities which are directed to render or to performed by the person to provide services to the trade. Business activities, business services वो activities हैं जो डायरेक्टेड होती हैं, रेंडर्ड होती हैं, परफॉर्म्ड होती हैं, सो दैट वी कैन फैसिलिटेट ट्रेड. इट इज़ कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज. तो बिजनेस सर्विसेज आर ऑल दो सर्विसेज विच आर facilitating trade, which are helping trade to run smoothly in the market. It is known as business services. Business services are intangible. It cannot be seen but it can be felt. For example, transportation, warehousing, banking, insurance, all these are the business services. See, nature of business services. Nature business services is डिफाइंड विद 5 आइज़. बिजनेस सर्विसेज को 5 आइज़ से डिफाइन करते हैं, जो उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स भी हैं और नेचर भी है. नंबर 1 इंटेंजिबल, नंबर 2 इनकन्सिस्टेंस, नंबर 3 इन्वॉल्वमेंट, नंबर 4 पेरिशेबिलिटी एंड नंबर 5 इंसेपरेबिलिटी. बिजनेस सर्विसेज को हम 5 आइज़ भी बोलते हैं. इंटेंजिबल, इनकन्सिस्टेंट, इंसेपरेबल, इन्वेंट्री एंड इन्वॉल्वमेंट. पेरिशेबिलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री. पेरिशेबिलिटी को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं. तो बिजनेस सर्विसेज आर कैटेगराइज इन 5 आइज़. बिजनेस सर्विसेज क्या है? दीज आर द आइज़ ऑफ सर्विसेज, दैट इज़ इन्वॉल्वमेंट, पेरिशेबिलिटी और इन्वेंट्री, इंसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी एंड इनकन्सिस्टेंसी. Now see the first feature or nature of business services, that is intangibility. Intangibility means which cannot be seen. So business services cannot be touched but it can be experienced. इसलिए business services भी क्या हैं? ये intangible हैं because it cannot be touched. It is impossible for the customer to see, feel, touch or smell services before they are bought.
ये इम्पॉसिबल है कस्टमर के लिए कि वो उसको फील करे, टच करे, स्मेल करे उन सर्विसेज को, जब तक वो उसको बॉट नहीं कर लेता है। तो दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। बिजनेस सर्विसेज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर में बिजनेस सर्विसेज को वही समझ सकता है जो उस सर्विस को इन्जॉय कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन बैंक द सर्विस ऑफर टू द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़। आप बैंक में जाते हैं, यू आर अवेलिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़, तो जिसके पास वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है वही उस बेनिफिट को इन्जॉय कर रहा है। सो इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फील बाय द कस्टमर हु इज़ गेटिंग और अवेलिंग दैट बेनिफिट. For example, the service provided by the doctor, lawyer, etc. cannot be seen, but it is availed by the customer who is availing that services. Number 2, inconsistency. देयर इज़ नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर सर्विसेज। हम किसी भी सर्विस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द सर्विसेज। ईच टाइम द सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू परफॉर्म एज पर द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। हर एक बार सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर की डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना पड़ता है। वी कैन नॉट मेज़र अ स्टैंडर्ड फॉर एनी सर्विस। हर बार सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। whatever customer is expecting, whatever customer is demanding, that is provided by the service provider. So it is a second important characteristics of service. There is no standard in tangible product. ये कोई business service को in standard tangible product नहीं है. Services have to be performed exclusively each time. हर बार services को अलग तरीके से perform करना होता है. It is also known called as heterogeneity. Services को heterogeneity क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बार उसको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको और बेटर वे में परफॉर्म कर रहा है. इट इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर. डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन. हर कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है, तो सर्विस प्रोवाइडर उसको उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली सर्विसेज अवेल कराता है. सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. और अगर सर्विस कस्टमर को वो समझ में नहीं आ रहा है, दैट सर्विसेज कस्टमर इज़ नॉट इन्जॉइंग, तो सर्विस प्रोवाइडर उसको ऑल्टर करता है, चेंज करता है, ताकि वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली उसको अवेलेबल करा सके. For example, the treatment provided by a doctor will vary from patient to patient according to their need. We'll say for example, बेटा ट्रीटमेंट जो डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इट मीन्स सर्विसेज आर इनकन्सिस्टेंट, मीन्स वी कैन नॉट बी मेजर्ड सर्विस. और बार सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल कराता है. सो इट हैज़ अ नेचर ऑफ हेट्रोजेनिटी. Now see the next point, that is inseparability. This is the third feature of business services. The service provider and the customer are simultaneously. Service provider और customer simultaneously work करते हैं. Service provider is providing services and at the same time customer is availing that services. ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर पहले सर्विस दे रहा है, कस्टमर उसको बाद में अवेल कर रहा है. कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर एक साथ साइमल्टेनियसली मार्केट में वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस को या ट्रीटमेंट को 5 दिन पहले नहीं दे सकता है. वो तभी देगा उस पर्सन को ट्रीटमेंट जब वो बीमार पड़ेगा या इफ़ ही फॉल सिक, तभी वो उस ट्रीटमेंट को लेता है. तो सर्विस प्रोवाइडर मीन्स अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज. सर्विस इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन. साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है. दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विस सीम्स टू बी इनसेपरेबल. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट. अब ये नहीं है कि आप ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट और टेकिंग अ सर्विस फ्रॉम डॉक्टर, तो साइमल्टेनियसली वर्क करता है सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कस्टमर को. दे आर वर्किंग टुगेदर, तभी ये उनको सर्विसेज अवेल हो पाती हैं. एट अ टाइम व्हेन दे आर अवेलेबल तभी सर्विसेज को ले सकते हैं. तो सर्विसेज कैन बी, it is inseparable means service cannot be separated from the provider of services. They are produced and consumed at the same place only. वो produce और consume same place पर होते हैं. For example, we cannot separate the medical service provided by a doctor from the doctor. हम मेडिकल सर्विसेज को डॉक्टर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. डॉक्टर है तभी हमें मेडिकल सर्विसेज मिल रही हैं. इट मीन्स कस्टमर, सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर ये सब एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, पेरिशेबिलिटी. पेरिशेबिलिटी और इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं. पेरिशेबिलिटी मीन्स दिस सर्विस कैन ऑल्सो बी सेट एज इन्वेंट्री. इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं. द सर्विस कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड टू द नेक्स्ट डे एंड इट कैन नॉट बी स्टोर. हम इस सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डे. इट इज़, if it is not used today, it is last for the ever.
अगर सर्विस को हम आज यूज़ नहीं कर रहे तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। इट मीन्स द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज़ दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम पे सर्विस को कंज्यूम करना होता है व्हेन दे आर प्रोड्यूस। सो देर इज़ नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज, इसलिए स्टॉक ऑफ सर्विसेज मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली दैन इट इज़ अ टोटल लॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैकेंट सीट इन आ सिनेमा हॉल, आपने कोई टिकट लिया पिक्चर का लेकिन आप मूवी में नहीं जा पाए, इट मीन्स अब उस टिकट पे आपका जो है सीट वैकेंट रह जाएगी, उसको कोई और आप उस सर्विस को अवेल नहीं कर रहे तो वो आपकी उसी समय ख़त्म हो जाएगी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ वन कैन बुक द एयर टिकट बिफोर ट्रैवल डेट, आप एयर टिकट को ट्रैवल डेट से पहले बुक कर सकते हैं, लेकिन आप उस फ़्लाइट को तभी इंजॉय करेंगे जब आपकी डेट होगी। आप किसी और फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, जिस फ्लाइट का आपके पास टिकट है, जिस टाइम का टिकट है, आप वो सर्विस उसी समय लेंगे। इट मीन्स इन्वेंट्री कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये उसी समय लेते हैं जिस समय आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इन्वॉल्वमेंट। Involvement means a customer is directly involved in the delivering process of the service। कोई भी कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है डिलीवरिंग प्रोसेस ऑफ सर्विस, क्योंकि सर्विस किससे प्रोवाइड करी जाती है, कस्टमर को प्रोवाइड करी जाती है। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज़ एसेंशियल, और वो सर्विस को अगर एक्सपीरियंस करना है तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन एसेंशियल है। ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट, और कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सर्विसेज को मॉडिफाइड भी करता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज, बट टू यूज़ दिस सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक और रिसीव द कॉल। टेलीफोन कंपनीज टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन अगर आपको इन सर्विस को यूज़ करना है तो उस कस्टमर को उसकी कॉल को लेना पड़ेगा, तभी आप उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन डिस्कस द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स इन रिविजन क्लासेस, ठीक है। तो दीज आर द इन्वॉल्वमेंट, तो दीज आर द 5 आईज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। नाउ सी डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बार बार कह रही हूँ सर्विसेज गुड्स अलग हैं, गुड्स को अवेलेबल गुड्स को फैसिलिटेट करती हैं सर्विसेज। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स आर टेंजिबल, गुड्स आर सेपरेबल, गुड्स आर होमोजीनियस। गुड्स टेंजिबल होते हैं, गुड्स सेपरेबल होते हैं, गुड्स होमोजीनियस होते हैं, जबकि सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं और नॉन ट्रांसफरेबल होती हैं। पेरिशेबल वाले सर्विसेज आर इंसेपरेबल, सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं और ये इंसेपरेबल भी होती हैं। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती हैं। सी द प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। द एक्टिविटी, सी an activity or process, goods services are an activity or process, for example watching a movie in a cinema hall. Goods are physical object, for example video cassettes of movie. Good services क्या है? services एक वो activity और process है, for example journey of flight। और goods क्या है? goods is a physical product, for example a flight ticket। then number 2 type, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, क्योंकि हर कस्टमर के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती रहती है, लेकिन गुड्स आर होमोजीनियस, इट इज़ अवेलेबल इन द सेम मैनर टू ऑल द कस्टमर्स। नंबर 3 इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फील बाय द पर्सन हु इज़ अवेलिंग दैट सर्विसेज, वेयर एज गुड्स आर टेंजिबल, इट कैन बी सीन। Inconsistency next, in different customers have different demands। Services are inconsistent because different customers have different demands. Goods are consistent because different customers getting the standardized product or standardized demand। It means goods कि आपके services क्या है, inseparable हैं, production and consumption can be separated from each other, लेकिन जो उसमें services are inseparable, the services are consumed while they are being performed। और आपकी goods क्या है, goods are separable हैं because goods are production and consumption can be separated फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि गुड्स में प्रोडक्शन और कंजप्शन को हम सेपरेट कर सकते हैं। इनसेपरेबल में ये भी आता है कि साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, एग्जाम्पल ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, सर्विसेज को हम साइमल्टेनियसली अवेल करते हैं, जबकि गुड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। देन इन्वेंट्री, वी कैन नॉट मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज बिकॉज सर्विसेज आर कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक बिकॉज सर्विसेज आर एक्सपीरियंस एट द टाइम व्हेन दे आर अवेल्ड। Goods can be stored because we can maintain a stock and we can make it available during the year। Involvement, participation of the customer in the service delivery process is compulsory। service delivery process में customer का participation compulsory होता है because customer ही उसमें directly involve होता है, customer ही उसको directly avail करता है। For example buying a mobile bill plan, but
इन गुड्स इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन गुड्स में इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी नहीं है, डिलीवरी के टाइम पे इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अ मोबाइल फ़ोन, जब तक मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये कस्टमर तक अवेलेबल नहीं होता है। कस्टमर उसको तभी अवेल करता है जब वो पूरी तरीके से लॉन्च होकर मार्केट में आ जाता है। तो इन्वॉल्वमेंट इन सर्विसेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर इज़ नेसेसरी, बट इन गुड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर इज़ नॉट नेसेसरी. I hope you all have understand this. Now see the next topic, that is types of services. Types of services. There are three main types of services. Number 1, business services. Number 2, social services. Number 3, personal services. There are three main types of services: business services, social services and personal services. Business services क्या हैं? Business services are those services which are used by business enterprise to carry on business activities more smoothly. बिज़नेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जिसको बिज़नेस इंटरप्राइज यूज़ करती हैं ताकि उनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन कर सकें. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ बिज़नेस सर्विसेज का एग्जांपल है. सोशल सर्विसेज and are those services which are generally provided voluntary in pursuit of certain social goal. सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज है जो वॉलेंट्री प्रोवाइड होती हैं टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज. सोशल सर्विसेज आपका जो है इट इज़ देयर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, improve sanitation in slum areas, providing education facilities in slum areas. These are the services which are carried by the government, business enterprise and NGO. Number 3 is personal service. पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर. पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज है जो पर्सनली प्रोवाइड करी जाती है कस्टमर को, एंड इट इज़ एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर. दी सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर. ये सर्विसेज नेचर कंसिस्टेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट सर्विसेज, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर. ठीक है बेटा. Now up to here I am explaining in this lecture. I hope you all have understand. Whatever doubts are there, find it out, and during your Zoom class, Zoom revision class is there, उसमें आप अपने उस doubts को पूछा करिए. Complete your assignment, complete your notes in your copy. Start chapter 4. Do notes separately. Chapter 1 notes in one way, chapter 2, then chapter 3, then chapter 4. No need to mix the notes of one chapter in other one. I hope you all have understand. Have a nice day. Be healthy, be safe. Thank you beta, thank you. Have a nice day.